أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، اصحاب ہیں، زملاء ہیں، ان کے اوصاف یہ ہیں کہ آپس میں ریشم کی طرح نرم ہیں اور رزم حق کو باطل ہو تو فولاد کی طرح سخت ہے. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تسبیح اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و مقدس کے لیے. درود و سلام ہو نبی الانبیاء، شافع مجرمہ، سید الاولین والآخرین و سید الثقلین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم بھائیوں، اس امت کا ایک بہترین طبقہ، بہترین گروہ، اگر اس امت کو ہم دودھ قرار دیں تو اس کا مکھن، وہ جسے کہتے ہیں پہاڑی کا نمک اور زمین کا چراغ، اگر کوئی گروہ اور اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. غور کیجئے، نبی کائنات نے جہاں اپنے بارے میں فرمایا، اور ہمیں معلوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آقا نامدار سے بہتر، آپ سے بڑھ کر، آپ سے برتر اس کائنات میں کوئی شخصیت نہیں. جس طرح نبی کائنات سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین خاندان جو نصیب فرمایا وہ مجھے، بہترین خاندان قریش کا خاندان پوری دنیا میں، اور قریش میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کو اللہ نے پسند فرمایا تو وہ میں ہوں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں سب سے بہترین شخصیت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سب سے بہترین امت بھی آپ کی امت ہے، اور جو کچھ آپ کو عطا کیا گیا کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب نبی کائنات کے لیے ہر چیز اعلیٰ اور ارفع ہو، تو پھر جب آپ کے اصحاب کی باری آئے، آپ کے دوستوں کی باری آئے، آپ کے ساتھیوں کی باری آئے، تو آپ کو پھر اچھے دوست نہ دیا جائے؟ یعنی دنیا میں کوئی پوچھے اور کوئی بتائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے سب سے بہترین لوگ اس امت کے کون سے تھے، تو ظاہر ہے سبھی بتائیں گے، یہود بھی کہیں گے، ہر عقل مند، ہر ذی شعور کہے گا کہ وہ اصحاب موسیٰ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے. اور عیسائیوں کی امت میں پوچھا جائے تو کہیں گے جو لوگ
जनाब ईसा के साथी थे वो बेहतरीन हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले बेहतरीन हैं, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो जो मेरे रब का इंतखाब है। देखें, ये कुछ भी, हम एक लफ्ज बोलते हैं रिज्क, आमतौर पर हम रिज्क से मुराद लेते हैं ये जो खाते पीते हैं, नहीं, हर वो चीज जो हमारी किस्मत में लिखी है वो हमारा रिज्क होता है। हमारी उम्र क्या है, हमारे आज़ा कैसे हैं, हमारी रंगत कैसी है, हमें बीवी कौन सी मिलनी है, हमें औलादें कौन सी मिलनी है, और कहां कहां क्या क्या हमें पेश आना है, ये सारा कुछ रिज्क होता है। तो नबी ये कायनात के एक एक इंच का, एक एक लम्हे का, एक एक साथ का, एक एक चीज का मेरे रब ने इंतखाब किया, और ये साथी भी अल्लाह ताला ने इंतखाब किए। देखिए कुरान कहता है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही नहीं चुन लिए अल्लाह के नबी के साथी, असहाब ऐसे ही नहीं मुंतखब कर लिया, ये कोई छट्टा नहीं था, ये कोई ऐसे खुदा ना खास्ता कोई अंधा इंतखाब नहीं था। बड़ी बसीरत के साथ, बड़ी सोच के साथ, बड़े तफक्कुर के साथ और बड़े सख्त मेरिट पर अल्लाह ने दिल मुंतखब किए। कुरान कहता है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, मेरा और आपका इम्तिहान अभी होना है, मेरा और आपका इम्तिहान अभी जारी है, पता नहीं हमने पास होना है कि फेल होना है, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हम सबको पास फरमा दे। लेकिन सहाबा के बारे में फरमाया अल्लाह ने इनका इम्तिहान ले लिया और इनके दिलों का इम्तिहान हुआ और तकवा का इम्तिहान हुआ। जो उसमें पास हुए, जो उसमें पास हुए रब के इम्तिहान में, दिलों के इम्तिहान में, तकवा के इम्तिहान में, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मुंतखब फरमा दिया। ये कैसा मेरिट है, आप देखिए। इस मेरिट पे कभी पूरा उतरता है बिलाल हबशी, हबशा से चला है, कैसे नैन नक्श हैं, कैसा कलर है, कौन सा कबीला है, ना जात ऊंची, ना बरादरी ऊंची, ना कलर ऊंचा, ना मक्के के रहने वाले, लेकिन मेरिट पे पूरे उतरे, वो असहाबे मोहम्मद में से हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर मेरिट पे पूरा नहीं उतरा तो अबू लहब तमतमाता हुआ चेहरा। अबू लहब का माना ही है कि जिसके चेहरे पे जैसे शोला रोशन होता है, अनार की तरह का रंग, और कुरैशी और नबी अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार, लेकिन मेरिट पे पूरा नहीं उतरा तो असहाबे मोहम्मद नहीं कहला सका। और सुहैब रूमी वो रोम से चले इसलिए कि इस इम्तिहान में कामयाब हो गए थे। तो पहला नुक्ता और पहली बात ये याद रखने की है कि ये लोग, ये अल्लाह का इंतखाब हैं, ये लोग इम्तिहान में कामयाब होने के बाद, मेरिट पर पूरे उतरने के बाद नबी कायनात के साथी मुंतखब किए गए। बड़ी ही बदकिस्मती और शकावत और बदबख्ती और बदकिस्मती की बात है कि कोई शख्स इस मेरिट को कोई उल्टी और मैली निगाह से देखना शुरू कर दे। वो कहे कि उम्मत मूसवी में असहाबे मूसा तो बेहतरीन है, वो कहे ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में असहाबे ईसा तो बेहतरीन हैं, वो कहे कि हर नबी के साथी तो बेहतरीन हैं, लेकिन नाउज़ बिल्लाह जब मेरे नबी की बारी आई तो इसके साथी अच्छे नहीं थे। ये कैसी बात है, ये कैसी बात है। और फिर कोई कहे कि जनाब ये सहाबा कराम तो नबी अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद ऐसे और ऐसे हो गए। अच्छा, तुम्हारे उस्ताद के जो शागिर्द होते हैं वो बड़े कामयाब होते हैं और उस्ताद फख्र करता है कि ये मेरे शागिर्द कोई फलां जगह पहुंचा, कोई फलां जगह पहुंचा। वो जो मुअल्लिम इंसानियत हैं, वो जो कायनात के उस्ताद हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे मुमकिन है कि वो उस्ताद हों, जिब्राइल निसाब लेके आते हों, अल्लाह ने दिल मुंतखब किए हों, और फिर कोई बेवकूफ और अहमक और सफी ये कहे कि नबी कायनात के बाद उनके दिल बदल गए थे। गोया कि तुमने नबी अलैहिस्सलाम को उस्ताद ही नहीं माना, तुमने अल्लाह के इंतखाब को इंतखाब ही नहीं माना। ये सहाबा कराम कौन है, कुरान मजीद से पूछिए। कुरान कहता है वस्साबिकून अस्साबिकून वस्साबिकून अस्साबिकून, यानी वो सबकत ले जाने वाले, वो सबकत ले जाने वाले हैं, वो हमसे पहले आए, दीन में सबकत इख्तियार की, कुर्बानियां देने में सबकत इख्तियार की, कलमा पढ़ने में सबकत इख्तियार की। और ये कौन है? कुल तीन ग्रोह हैं जो जन्नत में जाएंगे। याद रखिए,
सादा अंदाज में आज बात करेंगे और बात समझेंगे इंशाअल्लाह अल अजीज। ये कभी कोई उठता है, कोई डॉक्टर उठ खड़ा हुआ, कभी इंजीनियर उठ खड़ा हुआ, कभी कोई जनाब मुअर्रिख उठ खड़ा हुआ, कभी मुहक्किक उठ खड़ा हुआ, और करता क्या है? सहाबा पे तान, सहाबा पे तनकीद, सहाबा के बारे में कैसे बेवकूफ और अहमक लोग हैं। सहाबा कौन हैं? ये दो गिरोह सहाबा के और एक तीसरा गिरोह है। कौन से दो गिरोह हैं? अल मुहाजिरीन, वो जो हिजरत करके आए, हिजरत करके मदीने आए, वल अंसार, और जो इनके मेजबान मदीने में बन गए, अंसार बन गए, अवानो अंसार बन गए, वो बेयारो मददगार थे, ये उनके मददगार बन गए। और किस तरह बने? कायनात हैरान है, आसमान चश्मे फलक जो थी वो हैरत से उनको देखती थी कि कायनात में ऐसे अच्छे दिल वाले, यानी दो बाग हैं तो एक बाग दे दिया, दो घर हैं तो एक घर दे दिया, दो बीवियां हैं तो कहते हैं जो पसंद है उसको तलाक दे। तो है कोई ऐसी मिसाल? ये अंसार हैं। और जो मुहाजिरीन है सब कुछ छोड़ के आ गए। 10 रुपया नहीं, भाई भाई को नहीं छोड़ता, कत्ल हो जाते हैं। हम न्यूज में देखते हैं, अखबारात में देखते हैं, एक वो जो वट होती है जिम्मेदारों की, उस पर लड़ पड़ते हैं, उस पर मर मिटते हैं, और जनाब वरासत पे लड़ पड़ते हैं, और कत्ल गारत तक बात पहुंच जाती है। खूनी रिश्तेदार। और ये कौन है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं। आधा आधा कुछ देने को तैयार हैं। मुहाजिरीन सब कुछ छोड़ के आ गए, घर छोड़ा, दरो दीवार छोड़े, अपने छोड़े, वो गलियां जिनमें बचपन बीता था। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं जो इंडिया छोड़ के आए हैं, मेरे एक मामू मुल्तान में रहते हैं, लाहौर आए, मैं उन्हें वाघा बॉर्डर ले गया। वो जहां परेड शरेड होती है वहां खड़े थे, दूर ऐसे ही देख रहे थे, निगाहें उठा के देख रहे थे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर रोने लग पड़े। तो मैंने कहा यहां रोने की क्या वजह है? कहने लगे असल में अपने आबाई जमीन याद आ गई, मुझे वो खूह याद आ गए, वो जमीनें याद आ गई, वो ज़रातें याद आ गई। आसान होता है छोड़ना? छोड़ के आ गए सारा कुछ, मेजबानी भी अखीर की, और छोड़ने वाले भी शानदार। दो गिरोह कुरान ने बता दिए, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और तीसरा जन्नती गिरोह है जो इनकी पैरवी करेगा बेस्ट तरीके से, एहसान के साथ। एहसान क्या होता है? एक्सीलेंस का दर्जा, यानी या तो मैं अल्लाह को देख रहा हूं इबादत करते हुए, अगर ये मुमकिन नहीं तसव्वुर करना तो फिर अल्लाह मुझे देख रहा है, इस दर्जे की इबादत। तो क्या बताया अल्लाह तबारक व तआला ने? जन्नती गिरोह 3 है। पहला मुहाजिरीन, दूसरा अंसार, तीसरे वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, जो इनकी पैरवी करेंगे अच्छे तरीके से। चौथा कोई गिरोह जन्नती है ही नहीं। जन्नत कैसे मिल रही है भाई? मुहाजिरीन गुजर गए, अंसार भी चले गए, अब कौन जन्नती बचेगा? जो इन सहाबा की बेहतरीन तरीके के साथ पैरवी करेगा। वो जन्नती है ना जो कुरान कहता, या वो जन्नती है जो सहाबा पे तनकीद करेगा? है कोई ऐसी बात? या देखिए सहाबा के बारे में हमारा अकीदा यह है, कुरान का अकीदा यह है, वो मासूम नहीं है लेकिन मगफूर जरूर हैं। गलतियां उनसे हुई, नबी वो नहीं थे लेकिन रब ने उन्हें माफ फरमा दिया। कुरान में इसके सर्टिफिकेट, नबी की अहादीस में इसकी शहादतें, वो मगफूर हैं। और मुझे और आपको हम कोई कह सकता है कि हम मगफूर है? मगफूर का माना है बख्शे हुए। कोई खड़ा हो सीने पे हाथ रख के कहे कि मैं मगफूर हूं, सब लरसते हैं, सब कांपते हैं, पता नहीं कब्र में क्या होना है, पता नहीं हशर पे क्या होना है, पता नहीं पुल सिरात पे क्या होना है। लेकिन सहाबा के बारे में कुरान बताता है, नबी की अहादीस बताती हैं, वो मगफूर हैं, बख्शे हुए हैं। गलतियां हुई, रब ने खताएं माफ फरमा दी, कुरान में आयतें उतर आई। और मैं और आप कौन हैं? हम तो मजबूर हैं, हमें तो पता नहीं। अच्छा कोई शख्स किसी अपना ही नहीं पता, वो उठे, अपना कलम उठाए, अपनी जुबान खोले और जो मगफूर हैं उनके बारे में बातें करनी शुरू कर दी। उससे बेवकूफ कोई हो सकता? उससे बेवकूफ कोई बढ़कर हो सकता है? कुरान मजीद में एक और मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं, और ये कुरान है, मैं कुरान बयान कर रहा हूं, कुरान की आयतों से बात को हम समझ रहे हैं। इसका मतलब है जो इन आयतों को नहीं मानता,
جو صحابہ کی اس شان کو نہیں مانتا وہ گویا کہ قرآن کو نہیں مانتا، کیونکہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو فتح سے پہلے ایمان لائے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے، یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ جی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ وہ عظیمت والے ہیں، کوئی شک نہیں وہ عظیمت والے ہیں، وہ ان کا درجہ زیادہ ہے، کوئی شک نہیں ان کا درجہ زیادہ ہے، لیکن جو بعد میں ایمان لائے یہ تان کرنے کا طریقہ اختیار کرتے، یہ تو جی بعد میں ایمان لائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کوئی پہلے ایمان لایا ہو، کوئی بعد میں ایمان لایا ہو، لیکن ہو صحابی کلن کا معنی سارے کے سارے، کل کے کل صحابہ۔ وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا۔ کوئی بات رہ گئی جی باقی؟ کوئی بات رہ گئی باقی کہ ان صحابہ کے بارے میں بات کی جائے؟ صحابہ کرام دونوں سے وعدہ کیا ہے جنت کا۔ کوئی فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آیا، کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لے آیا، درجے پہلوں کے زیادہ ضرور ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس دور میں خرچ کیا، جہاد کیا جب بہت تھوڑے تھے، کام بڑا مشکل تھا، بعد والے آئے تو کام آسان ہو چکا تھا۔ لیکن یارو بات سنو، میں یا میرے جیسا کوئی شخص جس کو یہ مائک میسر آ جائے یا قلم میسر آ جائے یا ٹی وی کا کوئی اینکر میسر آ جائے اور میں بات کرنی شروع کر دوں صحابہ کرام پہ، اور میری یہ آنکھیں، میں نے کیا دیکھا ہے، صحابہ کی آنکھوں نے کیا دیکھا تھا؟ ان آنکھوں نے نبی کائنات کا چہرہ دیکھا تھا، ان کانوں نے آقا کائنات کی آواز کو سنا تھا، ان آنکھوں نے نبی کائنات کو چلتے پھرتے دیکھا تھا، آپ کے لب مبارک دیکھے تھے، آپ کا چہرہ اقدس دیکھا تھا، آپ کی زلفیں مبارک دیکھی تھی، ان کانوں نے نبی کائنات سے قرآن سنا تھا، اس زبان نبوت سے، زبان اقدس و اطہر سے اپنی جنت کی بشارتیں سنی تھی۔ اور میں ان آنکھوں والا نبی کو دیکھنے والی آنکھوں پہ تان کروں، میں اس زبان والا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے والوں پہ تان کروں، میں ان کانوں والا نبی علیہ السلام کی آواز سننے والے کانوں پہ تان کروں، تو اس سے بڑی حماقت، اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑی صفات اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کون تھے؟ اللہ اکبر، ان میں سے ایک ربیعہ اسلمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سچی بات ہے، میں یہ بات اپنی پوری بصیرت کے ساتھ جتنا میں نے پڑھ رکھا ہے اس کے تناظر میں کہتا ہوں کہ کائنات میں صحابہ کرام سے زیادہ بہترین لوگ انبیاء کے بعد میسر ہی نہیں تھے، مارکیٹ میں مال ہی نہیں تھا، ورنہ اللہ وہ لا کے دیتا، ورنہ اللہ وہ لا کے دیتا۔ اور بھائی میرے لیے مشکل ہو سکتی ہے، آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، اس کائنات کے خالق کے لیے مشکل ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو بہترین لوگ، اگر یہ بہترین نہ ہوتے تو اس سے بہترین اللہ دے دیتا، یہ بہترین لوگ۔ صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں آج سمجھ لیں۔ دین مکمل ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کب سے چلا جی؟ یہ حضرت آدم سے چلا، اس میں تمام انبیاء اکرام آئے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کچھ کا تذکرہ قرآن میں آیا، کچھ کا آیا ہی نہیں، تو سارے انبیاء آئے، دین مکمل نہیں ہوا۔ پھر وہ دن آیا، عرفات کا میدان، اونٹنی پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود، آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اتری تو یہودی کہنے لگے اگر یہ آیت ہمارے پاس آتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اتنی عظیم آیت۔ یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہے، میں آج آپ کو بتاتا ہوں، یہ آیت صحابہ کی شان بیان کرتی ہے، یہ آیت صحابہ کا ایمان بیان کرتی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے، دین تب تک اگلا حکم آتا نہیں تھا جب تک پہلے پہ عمل نہ ہو جائے، نہیں آتا تھا۔ اور صحابہ بھی کہتے ہیں تعلمنا العلم والعمل معا، ہم اللہ کے نبی سے علم بھی سیکھتے تھے، ساتھ عمل بھی سیکھتے تھے۔ کئی سال صحابی کو لگ گئے سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر سیکھتے ہوئے، کیوں؟ وہ ساتھ عمل بھی کرتے تھے۔
اگر صحابی دین پہ عمل نہ کرتے، اگلا دین کا مرحلہ نہ آتا، اگلی آیتیں نہ اترتی، اگلے احکام نہ اترتے، دین مکمل نہ ہوتا۔ دین مکمل ہوا، اس کا مطلب ہے صحابہ نے ایک ایک حکم پر عمل کیا، اللہ دیکھتا رہا، اللہ نگران تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، اسوہ حسنہ تھے، تو وہ جو عمل کرتے گئے، اگلی آیتیں اترتی گئیں، اگلے احکام اترتے گئے۔ جب جس دن یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، گویا کہ رب نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ صحابہ پورے دین پر عمل کر چکے۔ کیسے عمل کرتے تھے، کیسی محبت تھی ان کی۔ نعرے ہم بھی لگاتے ہیں، دعوے ہمیں بھی بڑے ہیں، اور اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ جو شاعر کہتا ہے بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھلاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ ہم کہنے کی وفا میں بڑے آگے ہیں، اس میں بھی کمزوریاں ہیں، اللہ کرنے کی توفیق بھی دے۔ صحابہ سراپا عمل تھے، صحابہ سراپا خیر تھے، صحابہ سراپا محبت تھے۔ اللہ اکبر۔ ربیعہ اسلمی کا تذکرہ ذہن میں آیا، آپ سے بیان کرنے لگا تھا تو ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اصحاب صفہ میں شمار ہوتا ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، کل جہانوں کی فکر ایک ہی ہے کہ پیارے مصطفیٰ کی خدمت میں آگے کیسے بڑھ سکوں۔ رات ہوتی ہے، کام کاج کے تھکے سارے لوگ بستروں میں، گرمی ہے آج کل تو پنکھا، اور اللہ توفیق دے تو ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے، اور سو جاتے ہیں، اور سردیاں ہوں تو ظاہر ہے لحاف اوڑھ کے کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ پورا مدینہ سو جاتا تھا، پیارے پیغمبر اپنے گھر میں آرام فرماتے تھے، لیکن ایک ربیعہ اسلمی نہیں سوتا تھا۔ بھائی تجھے کیا مسئلہ ہے؟ آ کے نبی کائنات کی چوکھٹ پہ باہر کے دروازے پہ بیٹھ رہتے تھے، آپ کے در اور دہلیز پہ بیٹھے رہتے تھے۔ بھائی کیا بات ہے ربیعہ، تجھے نیند نہیں آتی، تجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے؟ بھئی کیوں نہیں، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی نیند آتی ہے، میں بھی تھکا ہوتا ہوں، مجھے بھی آرام چاہیے، مجھے بھی سردی لگتی ہے، مجھے بھی گرمی لگتی ہے، پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ نبی تو چلے گئے، وہ اپنا چہرہ اقدس لے کے پہلے مسجد نبوی میں موجود تھے، ہم دیکھتے تھے، اب تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کہا دیکھ نہیں سکتے، لیکن جو اللہ کے نبی گھر میں کبھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ برکت تو مجھے محسوس ہوتی ہے، وہ آواز تو مجھے آتی ہے، تو میں بیٹھا رہتا ہوں۔ اچھا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دن میں تو جب نبی بھی جاگتے ہیں، اصحاب بھی جاگتے ہیں، تو سارے خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ کبھی رات کو میرے آقا، میرے سردار، میرے نبی، میرے محبوب کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہ آواز دیں، تو ایسا نہ ہو کوئی جانسار باہر موجود نہ ہو، وہاں ربیعہ اسلمی موجود ہونا چاہیے۔ تو پانی بھی لے کے بیٹھے رہتے کہ نبی علیہ السلام کو ٹوٹیاں تو نہیں تھی نا تب، جی ٹینکیاں بھی نہیں تھی، پانی بھر کے لاتے تھے، تو کبھی وضو کی ضرورت پڑ جائے تو ربیعہ کے پاس پانی کا لوٹا، پانی کا برتن ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی ہوا، ایک رات نبی علیہ السلام نکلے، پانی کی ضرورت تھی، باہر نکلے تو دیکھا ربیعہ تم یہاں بیٹھے ہو۔ ہاں آقا میں تو ہر رات بیٹھا کرتا ہوں۔ اور تم کیوں بیٹھتے ہو؟ آقا اسی لیے کہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو غلام حاضر ہو، جانثار حاضر ہو، وفادار حاضر ہو۔ وضو کروایا، یہ محبت دیکھ کے آقا کائنات کے دل پر بھی اثر ہو گیا۔ کہا ربیعہ مانگو جو مانگتے ہو، اس قدر محبت، ایسی خدمت کہ اپنی پرواہ نہیں، نہ نیند کی، نہ آرام کی، نہ سکون کی، اپنے نبی کے لیے راتوں کو جاگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ کہنے لگے پیارے نبی اب آپ نے کہہ دیا ہے تو سوچنے کا موقع بھی دے دے۔ ہم جیسا ہوتا تو لسٹ پہلے ہی بنی ہوتی ہے نا، دنیاوی کاموں کی پہلے لسٹ بنی ہوتی، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ کہا آقا یہ پیشکش معمولی نہیں، یہ آفر معمولی نہیں، مجھے سوچنے دیجئے کہ کیا مانگوں، ایک دن کی مہلت دے دیجئے۔ اگلا دن چڑھ آیا، نبی علیہ السلام سے ٹاکرا ہوا۔ کہا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا آقا بڑا سوچا ہے، یہ سوچا ہے کہ ربیعہ تم رات کو بھی نبی کے بغیر رہ نہیں سکتے، دن کو تو دیکھتے ہو، رات کو بھی نبی کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس کی چوکھٹ پہ بیٹھے رہتے ہو۔ کل حشر آئے گا، پھر جنت اور جہنم کی تقسیم ہوگی، اور نبی جو سردار انبیاء، جو تاجدار انبیاء، جن جیسا عبادت گزار کوئی نہیں، جن جیسا اللہ کا وفادار کوئی نہیں، وہ تو جنت کے بلند ترین درجوں میں ہوں گے،
اور रबिया तो पता नहीं कहां होगा। तो चुनांचे वहां कैसे दीदार करेगा, वहां कैसे सोबत नबी से फैज उठाएगा। तो प्यारे नबी मैंने सोचा है कि मुझे जन्नत में अपना साथी बना लीजिए, दुआ कर दीजिए कि जन्नत में मैं भी आपके साथ हूं। ये मांगा रबिया असलमी। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा रबिया बहुत बड़ी चीज मांग ली है, बहुत बड़ा मुकाम मांग लिया है, अब एक काम करना है, इन्नी अला नफ्सी का भी कसरत सुजूद। अब ये चूंकि मुकाम बड़ा आला है कि जहां नबी हो वहीं बंदा हो, तो उसका साथी हो, पैरोकार हो, वफादार हो, जानसार हो, तो चुनांचे कसरत से सजदे किया करो, कसरत से सजदे किया करो। तो मैं भी दुआ करता हूं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में तुम्हें मेरा साथ नसीब फरमा देगा। सहाबा ये होते हैं, उनकी उमंगें ये होती हैं, उनकी आरज़ुएं ये होती हैं, उनकी तलब और तड़प ये होती है। सहाबी किसको कहते हैं? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो। बड़ा आसान है तारीख की किताबें खोल के अपनी इन नाकस जुबानों से, मैं कहता हूं गंदी जुबानों से, यार जो सहाबा पे बात करे, अल्लाह के इंतखाब पे बात करे, मोहम्मद के दोस्तों पे बात करे, और यहां कोई किसी के दोस्त को कुछ कह देना, दोस्त अगर गैरतमंद हो तो डांगे निकाल के ले आते हैं, क्लासने निकाल के ले आते हैं, यार दोस्ती है हमारी। तो तुमने क्या समझा अल्लाह के नबी के दोस्त ही सबसे सस्ते हैं कि जिसका जी चाहे उस पे बात करने लग जाए, जिसका जी चाहे उनके ईमान पे बात करे। और तेरा तो ईमान सहाबा के मुताबिक हुआ तो कबूल होगा। कैसा बेवकूफ और अहमक है कि उनके ईमान पे बात करता। फैन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। कुरान कहता है वो कई जगह पे, पहले हमने आयत पढ़ी वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, तीसरा ग्रोह जन्नती वो है जो सहाबा जैसा, सहाबा की तरह का ईमान पेश करे। दूसरी आयत फैन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ, और सहाबा की तरह का ईमान हुआ तो फिर कबूल होगा। अल्लाह ने स्टैंडर्ड रख दिया, मेयार रख दिया, क्वालिटी ही ये है। और ये बेवकूफ, वो तेरा तो ईमान कबूल ही तब होगा जब सहाबा जैसा है, और तू कहता है सहाबा का ईमान, सहाबा का ईमान। औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इससे बड़ी जहालत कोई नहीं हो सकती। और कुरान ने यह भी कहा जो बाद में आने वाले हैं उन्हें दुआ करते रहना चाहिए कि नबी के असहाब के बारे में, पहले मुसलमानों के बारे में दिल में कोई कीना ना आ जाए, कोई बुग़्ज़ ना आ जाए, कोई अनावत ना आ जाए। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी तो है ना, अल्लाह अल्लाह सहाबी, अल्लाह अल्लाह सहाबी। ये तराया देखिए, अंदाज देखिए, उसलूब देखिए कि बहुत बड़ी अजीम बात है, मेरे सहाबा मामूली नहीं है। और दो रवायतें, एक में फरमाया ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबी को बुरा भला ना कहना। दूसरी वला तत्तखिज़ू गरज़ बादी, मेरे बाद इनको तनकीद का निशाना ना बना लेना। तो ये कुरान है, ये हदीस है, ये नबी के सहाबा हैं, ये मेयारे ईमान हैं, ये वफादार ईमान हैं, ये जानिसारे ईमान हैं, ये सहाबा किराम। इनमें कोई रबिया असलमी है, इनमें कोई उस्मान गनी है, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। जैशे उसरा का मौका है, ये जैशे उसरा किसे कहते हैं? तंगी का। कई जिहाद सहाबा ने किए, ओहद भी किया, बदर भी किया, फिर उनमें से तबूक का मौका आ गया, शाम में जाना था, रोमियों से टकराना था। खतरा यह था कि रूमी हमला करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, हम जाएंगे, इससे पहले कि वो आए हम जाके हमला करेंगे। मौसम ऐसा था, मदीने में आपको पता है काश्तकार लोग थे सारे, मक्का में ताजर लोग थे, मदीने के काश्तकार लोग थे, खजूरों के बागात थे उनके। तो मौसम ऐसा था कि खजूरें अभी पकी नहीं थी। अब यही होता है ना, जो जिम्मेदार हैं वो बेचारे इसी तरह कह रहे होते हैं कि फसल आएगी तो फलां करेंगे, फसल आएगी तो फलां करेंगे। फसल अभी आई नहीं थी, जो पास था खर्च कर चुके थे। ऐसे मौके पर जहाद के लिए निकलना था, और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ भी पेश करो अल्लाह के लिए, क्या पेश करते हो? तो सहाबा कराम किस तरह पेश करते हैं? उस्मान गनी, उनके वो 300 ऊंट साजो सामान समेत आए थे, वो अल्लाह की राह में पेश कर दिया। फिर कितना कुछ पेश कर दिया, दिरहम दिनार पेश कर दिए, और इतने पेश कर दिए कि प्यारे पैगंबर उनको ऐसे अपने हाथों पे उछालते थे और फरमाते थे उस्मान आज के बाद तुम जो भी अमल करो तुम जन्नती हो। सहाबी इसे कहते हैं, सहाबी इसे कहते हैं। और सहाबी किसे कहते हैं? कुरान मजीद में आयत उतर आई, इतनी बड़ी आयत कि सहाबा कराम को इससे बड़ी यानी गिरा गुजरने वाली, बोझल लगने वाली,
मुश्किल लगने वाली कोई आयत और नहीं थी। आयत उतर आई कि अगर तुम दिल में कोई बात रखो वइन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। बहुत मुश्किल आयत थी, बड़ा ही मुश्किल मरहला था। क्या तर्जमा बनता है कि जो तुम कोई चीज सोचते हो, कोई ख्याल तुम्हारे ज़हन में आता है, कोई बात तुम्हारे दिल में आती है, तो वो तुम बेशक दिल में रखो या जाहिर कर दो, अल्लाह उसका हिसाब लेगा। सहाबा किराम घुटनों के बल आ गए अल्लाह के नबी के पास, कहने लगे प्यारे नबी ये तो हमारे बस से बाहर, ये तो बसात से ही बाहर है। हज का कहा हमने हज किया, नमाज का कहा हमने नमाज पढ़ी, सदका का कहा हमने सदका किया, लेकिन अब ये देखें हमारे बस में ही नहीं है। दिल में कोई बात आ जाती है, अल्लाह तो फरमाता है कि उस पर भी गिरफ्त होगी, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। दिल तो हमारे इख्तियार में नहीं है, अमल तो इख्तियार में है, लेकिन दिल में कोई भी बात आ जाती है, कोई भी ख्याल आ जाता है, कोई भी वसवसा आ जाता है, तो इसमें भी अगर गिरफ्त होगी। दो बातें समझ में आती हैं। एक ये कि सहाबा सिर्फ जुमा इसलिए नहीं सुनते थे, तकरीर नबी की इसलिए नहीं सुनते थे, कोई बात नहीं, जुमा पढ़ने गए हैं, एक एक बात इसलिए सुनते थे कि उस पर अमल भी करना है। लिहाजा जब लगा कि भाई दिल पे तो असर जो बात आती है उस पे तो हमारा इख्तियार ही नहीं है, बस ही नहीं है, इस्तात में ही नहीं है, तो फिर वो दो जानू होकर बैठ गए कि प्यारे नबी अब कैसे अमल करे। हज भी किया, नमाजें भी पढ़ी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम तो गोया के असहाबे यहूद की तरह करने चाहते, यहूद का रवैया अपनाना चाहते हो, जो कहते थे समेना व असैना, हमने सुन लिया और हमने नाफरमानी की। आयत उतर आई है, इस पे ईमान रखना होगा, इस पे अमल करने की कोशिश करनी होगी। यकीन कीजिए कि नामुमकिन है अमल करना, मुमकिन ही नहीं है। और बाद में जो आयत उतरी उसने बता दिया मुमकिन ही नहीं था, लेकिन सहाबा वो थे, कहने लगे ठीक है नबी अकरम, हम इस पे कोशिश करेंगे अपनी बिसात के मुताबिक। ये सहाबा इसको कहते हैं कि मुमकिन भी नहीं तो कोशिश फिर भी करेंगे। फिर आए तो तेरा आई ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ठीक है, ये कि इम्तिहान था अल्लाह ने लिया तो तुम कामयाब हुए, तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तबारक व तआला किसी नफ्स पर, किसी जान पर, किसी शख्स पर, किसी फर्द पर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। और ये सहाबा थे, अल्लाह की कसम, जहां नबी ने खड़े कर, एक सहाबी नबी अलैहि सलाम की वफात के बाद उनकी बिनाई जाती रही, आंखें ठीक ना रही, नजर खराब हो गई, नाबीना हो गए। कुछ दोस्त गए ताजियत करने के लिए, 70,000 फरिश्ते, अगर कोई सुबह के टाइम ताजियत करने जाए, इयादत करने जाए, तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआ करते हैं। कोई शाम को किसी की बीमार कुर्सी के लिए चला जाए, 70,000 फरिश्ते पूरी रात उसके लिए दुआ करते हैं। तो ताजियत इयादत के लिए सहाबी वहां गए, पता क्या कहने लगे? कहने लगे यार कोई बात नहीं, आंखें चली गई, कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है, और इसलिए कि जिसको देखना था वो भी तो नहीं रहा, और जिस नबी को देखते थे वो ही नहीं रहा, वो मंजर नहीं रहा, तो इस नजर की जरूरत ही क्या है। ये सहाबा किराम थे। और इसी जैसे उसरा में अल्लाह अकबर, वो एक सहाबी थे, लाना था ना कुछ हजरत उस्मान भी लाए, वो आपने देख लिया, और हजरत अबू बकर सिद्दीक भी लाए, और हजरत उमर फारूक भी लाए। वो मशहूर वाकया इसी गजवा का है कि जब हजरत उमर फारूक ने सोचा कि आज आगे बढ़ते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से, तो चुनांचे अपने आधा घर लेके चले गए। आधा घर, यार कभी किसी ने ऐसे नहीं किया हो। कोई ऐसा है शेर दिल जवां मर्द तो खड़ा होकर मुझे दिखाए कि मस्जिद से या किसी और जगह से अल्लाह के लिए खर्च करने का ऐलान हुआ हो और उसने आधा घर दे दिया हो, है कोई? और यार वो भी इंसान थे, उनकी भी जरूरतें थी। आधा घर जनाब उमर लेके पेश हो गए, और ख्याल था अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू बकर उमर क्या लाए हो? कहा जी आधा घर, आधा सामान, आधी जायदाद, आधी एसेट्स। और हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, कहा मां बकई तू, प्यारे पैगंबर घर में मैंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं छोड़ा, एक एक जर्रा समेट के आपके कदमों में लाके निछावर कर दिया। और हजरत उमर कहने लगे कि नहीं, अबू बकर तो इससे नहीं मैं बढ़ सकता, कभी नहीं बढ़ सकता। और वो कहा करते थे, हजरत अबू बकर, उमर फारूक कहा करते थे, काश मैं उमर ना होता, मैं अबू बकर के सीने का बाल होता, ताकि जिस कदर नेकियां उन्होंने की हैं, सबकत वो लेके गए हैं, तो उसमें मैं भी शरीके कार हो जाता। इसी गजवा में
हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 4000 दिनार सोने के सिक्के पेश किए और हजरत अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु वो सोचते थे मैं क्या पेश करूं। बाग में चले गए, सारी रात खजूरों को टटोलते रहे, पकी नहीं थी ना अभी, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी जो इस काबिल थी कि खाई जा सके, एक एक ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, थैले में भर ली और जनाब कोई 1.25 किलो के करीब वो हुई और वो लेके नबी अक़दस की खिदमत में आ गए। मजाक उड़ाने लग गए मुनाफिकीन। ये भी पता चला सहाबा पे बात करने वाले मुसलमान नहीं होते, कौन होते हैं जी? मुनाफिकीन। तो कहने लगे लो जी ये 1.25 किलो 1.5 किलो खजूरों से इन्होंने रूम फतह करना है। लेकिन वो जज्बा देखे पूरी रात कुछ पेश करने के लिए हासिल करते रहे। एक साहबी यहूदी का कुआं वो चलाते रहे, पानी निकालते रहे, उससे खजूरें मिली। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी खजूरें हैं वो पूरे ढेर पर फैला दी। तो ये सहाबा कराम है मेरे भाइयों, ये महीना मुहर्रम का होता है जिसमें हुक्म तो ये है, मुहर्रम का माना ये हुर्मत वाले महीनों में से एक है, वैसे भी हुर्मत वाले महीनों में से है, मुहर्रम का माना भी हुर्मत वाला। इसमें आम दिनों में जो कोई चीज होती है, हसासियत होती है, वो और बढ़ जाती है। किसी की इज्जत, किसी की जनाब माल, उसकी जान, उनकी और ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा काबिल एहतराम लोगों की इज्जतों के साथ लोग खेलना शुरू कर देते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा कराम से मोहब्बत करने वाला बनाए। वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान में से फरमाए जो एहसान के साथ उनकी पैरवी करते हैं, और उनमें से बनाए जो सहाबा जैसा ईमान रखते हैं, क्योंकि वही कबूल होना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।